Okay, a very good evening to one and all. So we will be starting with the discussion of GATE Environmental Science and Engineering 2023 paper. I will be discussing each and every question in detail which came in this exam, and along with that you will realize that it is quite overlapping exam with the UGC NET Environmental Sciences. And even if you are not good at mathematics, still you can catch this exam, and scoring a 50 marks out of 100 is not a big deal in this exam. And if you score 50 marks out of 100, your rank will be really very good, right? So don't have a phobia कि ये GATE environmental science and engineering है. There is nothing like कि it's a big deal. You can easily score, because if you ask me frankly, 6 to 6.5 units are common with NT and at JRF. And the benefit of this exam is multifold. Like you can either go for a PhD directly at any of the IIT or the MTech, or you can also appear in the interview which is held by the PSUs. So that is a good advantage of getting it into, right? Let's start without wasting any further time. So first we will deal the section of general aptitude, right, where you get 10 question. First 5 question will be of 1 marks, and then followed by other 5 question is of 2 marks. So we will be seeing the solution in detail. This general aptitude have been taken care by Sumit sir in our cloud classes, where he has given one aptitude program which is there. So if you do that aptitude classes properly, there is nothing like you cannot crack. So let's have a start. So coming to question number 1. This is question number 1 carrying 1 mark. So as you can see on my screen, that the initial 5 question will be of 1 marks in aptitude. You kindly take care of the scheme also, because scheme is also very important. You should know that how the questions are, right? So general aptitude section we are taking, where we will be getting 10 questions. So question number 1 to 5 will carry 1 mark each. And point to be noted that there is negative marking, right, in the exam which is there. So be aware about that also, right? So question first says, it's very simple question, and it says that Rafi told Mary, I am thinking of watching a film this weekend. The following reports the above statement is indirect speech. Rafi told Mary that he. So generally here it will be, if you in the general language and you are good in English, so you will simply spoke it out like he was thinking, because he was telling Mary. So he was thinking of watching a film that weekend, right? So it is like a sort of past tense, right? So the correct answer here is fourth, right? And we can deal with the explanation also. We will upload the explanation immediately after the discussion of this section. So Rafi told Mary that he was thinking of watching a film that weekend. So correct answer is D here. So D is the correct answer for question number 1, right? So this is the correct answer. He was thinking. And as you can see in the explanation head, we have keep the things here. So D was the correct answer when reporting someone else statement. If you are in like speaking in the passive tense, when reporting someone else statement in indirect report speech, the tense of the reported verb usually changes. And in this case, the original statement was made in the present continuous tense, right? And the immediately past continuous tense will apply. So therefore, the correct answer is that he was thinking, right? So he was thinking of watching a film that weekend. I hope it is clear to each and everyone. This will be available to you guys in the printed form also if you want to read. Anyone having any doubt in question number 1? Quickly. It's 1 mark. So आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, कोई ऐसा टफ नहीं है. और ये जो सेक्शन है, it is 15 marks. So easily a person can get 10-12 marks here. That is one of the advantage if you are planning for this exam. Now let's move to the second question which is there for aptitude part. This is the question. So the question says that question number 2 of aptitude, permit, right? By word meaning we have to say. So see the second pair. Enforce means relax. Enforce means you are
forcefully applying something, and relax is antonyms to that, right? Means opposite to that means relax. So similarly, if I take permit, permit means permission. So I have to choose forbid, which is the opposite to permit. So the correct answer here is B. So the correct answer in this case is B, right? So forbid is the correct answer here. In place of permit, the opposite is forbid. So similarly, you can see the explanation of the same, as we can see. So here you can see that we have put up all the details that why forbid is the correct answer. So relax is the antonyms of enforce. Similarly, permit का antonyms क्या होगा? Forbid. So it is like a 10th class question, even lesser than that. Could you imagine that? तो आपको इतना टफ नहीं है ये, right? So the correct answer in question number second is forbid. क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को तो बोल दीजिए भैया, हमें सारा ही पेपर डिस्कस करना है, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज अ वैल्यू, मार्क्स तो आपको मिलने ही है उसके भी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, यू माइट हैव डन इन द 10th क्लास और इवन लेसर देन दैट। आजकल का जो सिलेबस है उसमें मैं देखता हूँ ये सब कुछ 10th क्लास में है, राइट? इफ आई सी, राइट, ये सब जो है 10th क्लास में है आजकल का जो सिलेबस है मैथ का, अगर आप देखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए फटाफट से कैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज ये। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अ फेयर 6 फेस डाई, एक 6 फेस की डाई है जिसको आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो, लूडो सबने बहुत खेला लॉकडाउन में। तो लूडो में 1 2 3 4 5 6 होता है। फेस डाई आर लेबल टू 1 2 3 4 5 6, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? तो देखिए इसमें 6 आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना हो गया? 1 आउट ऑफ 6। पोल द रोल ऑफ अ डाइस एंड 4 ऑन द सेकंड रोल। तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो गेटिंग एनी नंबर ऑन अ डाई जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, यहाँ पे मैं बता देता हूं पहले से। सो व्हेन यू सी द प्रोबेबिलिटी हियर, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा गाइस? 1 कितने फेस पे होगा? एक फेस पे। और कितने फेस है उसके? 6 फेस, तो ये 1/6 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या हो जाएगा? 4 कितने फेस पे है? फेवरेबल नंबर आउटकम 1, और टोटल कितने? 6। अब कह रहा है कि मुझे मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द फर्स्ट रोल ऑफ द डाइस एंड 4 ऑन द सेकंड रोल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पहले पे क्या होना चाहिए? पहले पे आपका 1 होना चाहिए, तो 1/6 उसकी हो गई, इनटू दूसरे पे आपका 4 होना चाहिए, 1/6 उसकी हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज 1। क्या किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1/36। तो द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 1/36। जल्दी बताइए फटाफट से। एनीवन फेसिंग एनी डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि व्हाई आई एम सेइंग आवर स्टूडेंट ऑफ एनटीए नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंसेस कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम एंड हैव द ड्यूल बेनिफिट along with the net JRF. We have done that in past. A lot of people who were not having mathematics, they get through this exam. तो आपको 50 मार्क्स लाने हैं सिर्फ 100 में से, राइट? दैट यू कैन क्लेवरली डू। इट्स नॉट लाइक कि ये खाली इंजीनियर्स के लिए है एग्जाम, ये एनटीए नेट जेआरएफ वालों के लिए भी है, क्योंकि उनके पास भी 6.5 यूनिट का कॉमन सिलेबस है आपके पास। अगर आप मैथमेटिक्स में वीक भी है, नो डाउट 10 मार्क्स हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हमने सारा पढ़ाया हुआ है। देयर आर लेक्चर्स बाय अली सर and Dr. Sudhanshu from IIT Mumbai. Both of them have taken a full program on mathematics on cloud. But अगर नहीं भी मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग है तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। So here the correct answer is 1/36. Here the correct answer is 1/36, क्योंकि एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि पहले बार जब मैं करूं तो मेरे पास 1 हो पहले रोल पे और दूसरे रोल पे 4 हो, तो दोनों रोल की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे गाइस। देखिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। तो देयर इज 1 in 6 chances of getting 1 and 1 in 6 probability of getting 4. So since these rules are independent events, so 1/6 into 1/6 is 1/36. So the correct answer is 1/36. Everything is on place। हम लोगों का we do everything in detail and depth। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कट शॉट मिलेगा या इट इज फॉर द एड पर्पज ओनली, राइट?
तो वो हम लोगों से नहीं हो पाता है. दैट इज द प्रॉब्लम विद अस एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव इन द क्वालिटी स्टफ. राइट. उसमें टाइम लगेगा लेकिन यू हैव टू गो फॉर द क्वालिटी स्टफ. राइट. आगे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इजीली देख सकते हैं. फटाफट से क्विक एक रीडिंग देंगे. ये इंग्लिश जिनका पढ़ने का थोड़ा सा अच्छा होता है वो आराम से इसको इजीली डील कर लेंगे. देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. A recent survey shows that 65% of tobacco users were advised to stop consuming tobacco. उनको बोला गया कि भाई टोबैको को आप बंद कर दीजिए इस्तेमाल करना. The survey also show that 3 out of 10 tobacco user attempt to stop using tobacco. मतलब 10 में से 3 लोगों ने they tried कि हम tobacco यूज करना स्टॉप कर दें. Based only on the information in the above passage, which of the following options can be logically inferred with certainty? कि हम श्योरली क्या कह सकते हैं. अब देखो यहां से ये पता चला कि 65% ऑफ टोबैको यूजर को एडवाइस किया गया, मतलब 35 को नहीं किया गया. ठीक है, आउट ऑफ 100. सर्वे ये भी दिखाता है कि 3 आउट ऑफ 10 टोबैको यूजर अटेम्प्ट टू स्टॉप यूजिंग टोबैको, मतलब 7 पीपल आर नॉट लिसनिंग, 7 पीपल डोंट वांट टू. राइट. तो दो ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहां से क्लियर कट निकाली वो ये निकाली कि जो मेरे एक तो 35% पीपल को वी हैव नॉट एडवाइस. ये सब ऑब्जर्व करने की चीजें होती है गाइस. राइट. 35 people are not advised, only 65% people are advised. राइट. उसके अलावा जो है 7 out of 10 people they didn't try कि मैं रोक सकूं. ठीक है. अब कहता है कि सर्टेनिटी के साथ आप किसको कहेंगे. अब ध्यान से देखना. तो आप ये बताओ कौन बड़ा हुआ, 3 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10. 7 आउट ऑफ 10 बड़ा हुआ. जो 3 आउट ऑफ 10 है वो माइनॉरिटी हो गई. कहता है ए मेजोरिटी ऑफ द, पहले स्टेटमेंट को देखेंगे. ठीक है, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं गाइस फटाफट से. क्या कहता है. A majority of the tobacco users who were advised to stop consuming tobacco made an attempt to do so. ये तो गलत हो गया भैया. Majority of people denied. तो ये तो गलत हो गया, ये तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 आउट ऑफ 10 पीपल ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया. तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. सेकंड में क्या कहता है. सेकंड में क्या कहता है. सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा. A majority of the tobacco users who were advised to stop consuming tobacco did not attempt to do so. ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि 7 out of 10 people didn't even attempted. So this is absolutely correct. थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट आपको सारी देखनी है. Approximately 30% of tobacco users successfully stopped consuming tobacco. ठीक है. क्या ये 30% हुआ. राइट. इसने क्या किया, इन्हें ट्राई किया, अटेम्प्ट किया. सक्सेसफुल हुए नहीं हुए दैट डजंट मैटर. तो ये भी हम अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते. सक्सेसफुल हुए नहीं हुए क्योंकि सक्सेसफुल तो नहीं मेंशन है ना, खाली ये मेंशन है दे ट्राइड. ठीक है, अटेम्प्ट टू स्टॉप. ठीक है, बट सक्सेसफुली स्टॉप किया कि नहीं किया वी कैन नॉट से. फोर्थ स्टेटमेंट, अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ द टोबैको यूजर्स सक्सेसफुली स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको. ये भी गलत है. 65% को भी एडवाइज्ड, वेदर दे सक्सेसफुली डिड सो और not our job to do. So here the correct answer is B only. So the correct answer of this question is B. So B is the correct answer, where we have been said that a majority of tobacco users who were advised to stop consuming tobacco did not attempt to do so. जो 7 out of 10 थे. Is it clear to each and everyone? फोर्थ क्वेश्चन में क्लियरिटी है. बताओ इसमें क्या मुश्किल है. 30% इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि 30% ने तो ट्राई किया. अटेम्प्ट टू स्टॉप, अटेम्प्ट टू स्टॉप का मतलब होता है सक्सेसफुल होना ना होना उसमें नहीं है. देखो लिखा है ना 3 आउट ऑफ 10 टोबैको यूजर अटेम्प्टेड टू स्टॉप यूजिंग टोबैको. अब वेदर दे सक्सीडेड और नॉट इट्स नॉट मेंशन हियर. so that's why we are not sure. क्लियर है शुभांगी गुप्ता को. एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट. मैं आपको ये बताना चाहता हूं इट्स नॉट अ टफ एग्जाम, यू कैन इजीली क्वालिफाई इट whether you are a mathematical background or not, क्योंकि 6.5 unit common है. Our student have done really well in the past. You can also do. Anyone having any doubt? फोर्थ क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है जल्दी बताइए. क्लियर है. क्लियर. चलिए जी आगे चल रहे हैं. अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं. जब आप करेंगे ना गाइस आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ है ही नहीं इस एग्जाम के अंदर.
इट्स नॉट दैट टफ ऑफ एग्जाम। लोगों ने इसका हॉक्स कॉल बना रखा है, राइट? तो आप अगर ठीक से अप्रोच करते हैं, यू कैन हिट बोथ ऑफ देम, राइट? एक ही बार में दोनों को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डेप्थ तो आपके पास है ही। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और यहां पे हमने मेंशन किया गया है, मेजॉरिटी ऑफ टोबैको यूजर हु आर एडवाइज्ड टू स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको डिड नॉट अटेम्प्ट टू डू सो। ठीक है, क्योंकि 7 आउट ऑफ 10 ने तो कोशिश ही नहीं की, तो एक्सप्लेनेशन भी यहां मेंशन है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। ठीक है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, सिंपल सा लॉजिक उसने पूछा है। ये पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो सिंपल सा लॉजिक उसने क्या पूछा गाइस, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर। अब ये फिगर आपको दी हुई है, तो इस फिगर में मुझे ट्राइंगल बनाने हैं। कितने ट्राइंगल बनेंगे? ठीक है, मैं आपके सामने इस फिगर को लेके चलूंगा और फिर आप ही बताएंगे कितने बनेंगे। मैं क्या करता हूं, इस फिगर को मैं दो बड़ी फिगर में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, और मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब देखिएगा जरा जो मैं बना रहा हूं। पहले हम बड़े वाले को इनगल्फ करते हैं। मैंने छोटी दो फिगर में इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं बड़े वाले को इनगल्फ कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस कलर। ये देखिए, मैं पहले इस बाउंड्री को ट्रेस करूंगा। ये मैंने ले लिया। ठीक है, और इस बाउंड्री को ले लिया और इस बाउंड्री को ले लिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो जब आप इस तरह का अरेंजमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, जब आप इस तरह का अरेंजमेंट ले रहे हैं गाइस, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक, एक दो, एक तीन, एक चार, ये हुए चार। ठीक है, इसके बाद एक इधर से आया, ये बना पांच, ये बना छह। ठीक है, छह हो गए। अब इन दोनों को मैं हटा देता हूं और इधर वाले ले लेता हूं, 7 और 8 बड़ी फिगर से। ये हुआ 7 और ये हुआ 8। तो बड़े वाले ने मुझे 8 ट्राइंगल दिए। ठीक है, बड़े वाले ने मुझे 8 ट्राइंगल दिए। इसको मैं क्रैक डाउन कर लेता हूं, अगले पेज पे मैंने इसको क्रैक डाउन कर रखा है, बड़े और छोटे में। ये देखिए, तो बड़े वाले ने मुझे 8 ट्राइंगल दिए, जो मैंने बताया आपको, एक पैरेललोग्राम जो था। और जब आप छोटे वाले पे आए, इसके नीचे वाले पे आएंगे, जब इसके नीचे वाले पे आप आएंगे तो गिनिएगा, मैं गिनवा रहा हूं आपको आपके सामने सामने। ठीक है ना? आपके सामने सामने गिनवाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद जब छोटे वाले पे आप आएंगे, है ना, तो ये हो गए 8, फिर ये 9, फिर ये एक 10, फिर ये एक 11 और फिर ये एक 12। तो इस तरह से 12 छोटे वाले में होंगे। पहले वाले में, बड़े वाले में हमने 8 गिने, दूसरे में 12 गिने, टोटल हो गए 20 ट्राइंगल्स। टोटल 20 ट्राइंगल हो गए गाइस। और ये आप अगले में देख भी सकते हैं, मैंने क्रैक डाउन करके इसका लगाया हुआ है स्नैपशॉट जो है, कि कैसे हम इसको गिन सकते हैं। ये देखिए, गिनने का तरीका बड़ा आसान है। पहले बाहर वाली फिगर ली, ये बड़ी फिगर ले ली मैंने। ठीक है, पहले मैंने बाहर वाली फिगर ली, इस बड़ी फिगर को मैंने ले लिया, विच वाज शोइंग मी। ये बड़ी फिगर मेरे पास आ गई बाहर वाली, इसमें मुझे 8 ट्राइंगल मिले। ठीक है, चार तो ये रहे। ठीक है, और एक ये 5 और 6 और 7 और 8। ठीक है, चार तो यहां दिख ही रहे हैं, ये 5, ये 6, इन दोनों को हटा दूं, फिर ये वाला 7 और ये वाला 8, ये 8 हो गए। ऐसे ही फिर छोटे वाले को मैंने क्रैक डाउन किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 9 10 11 12। तो इस तरह के जो ट्राइंगल है, इससे आपके फिर 12 ट्राइंगल यहां से मिले, 8 ट्राइंगल यहां से मिले, तो टोटल ट्राइंगल हो गए 20। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दे भाई। एनीवन हैविंग एनी डाउट? बहुत सिंपल पेपर आता है गाइस। अब ये बताइए, ये क्या, ये 10th क्लास से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है। अगर एप्टीट्यूड में ही आप 15 में से 12 क्वेश्चन स्कोर कर लेंगे तो फिर रही क्या गया। हाँ, कुंडली चार्ट है, बिल्कुल जन्मपत्री जो बनती है आपकी, कुंडली बनती है, वही है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? हाउ इट केम टू 20 ट्राइंगल, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से। एनीवन?
Having any doubt till here? पूछ लेना, शर्माना मत, घबराना मत। तो ये तो थे एक एक मार्क वाले क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहां से एप्टीट्यूड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं गाइस। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और ये मैं पहले ही बता दूं कि ये वाले जो क्वेश्चन है 6 to 10, इनमें ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गेट में ये एक एडवांटेज भी है, या इसको कह लो आप डिसएडवांटेज भी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉर्ट ऑफ अ पैसेज है, और आपको 2 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। Student of all the department of the college who have successfully completed the registration process are eligible to vote in the upcoming college election। मतलब किसी कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है and people are saying कि भाई जिन भी का registration successful है they can vote, others cannot। However, by the time the due date for registration was over, it was found that the surprisingly none of the student from the department of human sciences या humanities आप कह सकते हो, arts had completed the registration process। अब मतलब जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको तो वोट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। वो तो वोट देने से गए, क्योंकि वही वोट दे सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, based only on the information provided above, which one of the following sets of statements can be logically inferred with certainty। मतलब 100% कौन सी चीज ट्रू है एज पर द पैसेज। जैसे आपको पेपर 1 में पैसेज आता है नेट में, वही हाल है यहाँ पे भी, और कुछ नहीं है। कहता है all those students who would not be eligible to vote in the college election would certainly belong to the department of human sciences। भाई ऐसा किसने कहा? ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ बच्चे हों, उनका रजिस्ट्रेशन पूरा ना हुआ हो। ह्यूमैनिटीज वालों का तो सारों का ही नहीं हुआ है, उसमें तो नन ऑफ द है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट के भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहां से सही हो गया? ये तो गलत स्टेटमेंट है, इसको तो मैं 100% सर्टेनिटी से कह ही नहीं सकता दिस इज रॉन्ग। ये 100% सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देर आर पीपल हु बिलोंग टू अदर डिपार्टमेंट, दे कैन ऑल्सो बी देयर। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, none of the student from the department other than human sciences failed to complete the registration process within the due time। ये किसने कहा? मुझे तो पता ही नहीं है इसके बारे में, मेरे पास पैसेज से इंफॉर्मेशन आई नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे पास पैसेज से इंफॉर्मेशन आई नहीं कि भाई दूसरों ने किया है कि नहीं किया, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचेगा गाइस, थर्ड ऑप्शन बचेगा। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं वेदर इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। कहता है ऑल द एलिजिबल वोटर्स, जितने भी वोटर एलिजिबल होंगे, वुड सर्टेनली बी स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस। ये बिल्कुल ठीक है। आर्ट्स वाले नहीं होंगे, वो चाहे किस भी डिपार्टमेंट के हो, क्योंकि आर्ट्स वालों में तो किसी का हुआ ही नहीं है, ह्यूमन साइंस में किसी का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी के साथ यू कैन ओनली से द स्टेटमेंट थर्ड, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। The correct answer is option number 3। So only 3 is the correct answer। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो समझने में? पेपर में आपको लॉजिक पे जाना है। अब बताइए, ये क्या कोई एमएससी लेवल का क्वेश्चन है? ये 10th क्लास का बच्चा भी जो ठीक से इंग्लिश पढ़ लेता है वो ठीक कर लेगा इसको। अब बताओ, दिस इज जस्ट अ फोबिया कि गेट है। अरे गेट, गेट मैथमेटिक्स का नहीं है, गेट एनवायरमेंटल साइंस का है भाई, ठीक है। तो मेरे क्वालिफाई तो मैं कर ही सकता हूं। और आईआईटी कहती है कि आप सिर्फ क्वालिफाई करिए, आप क्वालिफाई करके यू आर एलिजिबल फॉर एमटेक प्रोग्राम विद अ फेलोशिप ऑफ 12,000 पर मंथ, एंड यू कैन आल्सो गिव द इंटरव्यूज इन पीएसयू, प्लस यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम विद फुल फेलोशिप इन एनी ऑफ द आईआईटी या एनी ऑफ द एनआईटी आल्सो। बहुत मल्टीफोल्ड बेनिफिट है आपको। आइए आगे की सैर करते हैं थोड़ी और। क्वेश्चन नंबर 6 ये हुआ, आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर, देखिए मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि आप एक्सप्लेनेशन को उसकी डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपके क्लाउड में ये दे दी जाएगी एक्सप्लेनेशन। वैसे जिनको समझ में आ गया है तो वो बात डाइजेस्ट कर गए होंगे। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये फंक्शन वाला एक क्वेश्चन है। ये मैं मानता हूं कि थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ठीक है, जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हो
वो इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकता है। मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं गाइस। जो गिवन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शन की, जो आपका वेरिएबल है एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन होगा आपका, ठीक है, ऑड फंक्शन, तो यहां पे देखते हैं फटाफट से क्यों ऐसा हुआ। ये ग्राफ तो खैर आपको बना के जाने होते हैं, बट स्टिल मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड टू द गिवन दिस। तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि आप ये बताइए ग्राफ किसका ठीक है। अब आप एक देख पा रहे हैं कि जो ये ग्राफ है आपका, ये पीक कर रहा है अराउंड 0 to 1 के बीच में, और 2 को फिर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और एक्स कहां दिखाया हुआ है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, मींस जो भी फंक्शन होगा दैट विल बी डेफिनेटली मल्टीप्लाई विद दिस एक्स, राइट। एक तो ये बात यहां पे हिंटेड है। दूसरा, अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो अब क्या है, जब मोड के अंदर कोई चीज होती है गाइस, तभी वो पॉजिटिव रहती है। उसके बाहर अगर कुछ नेगेटिव टर्म है, तो स्क्वायर वाला फंक्शन तो यहां हो नहीं सकता। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन तो ये नहीं है, तो ये भी कट गया आपका। ये फंक्शन फुल्ली पॉजिटिव भी नहीं है, इसीलिए मोड एक्स वाला फंक्शन भी नहीं हो सकता प्योर, तो ये भी कट गया, वरना एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं बचेगी। और x इंटू टू टू दावर माइनस एक्स भी ये नहीं हो सकता। वाई ओनली बी चॉइस विल बी द अप्रोप्रिएट चॉइस, क्योंकि यहां पे ये फंक्शन जो है ऑड टाइप का फंक्शन है। और जब आप इसको कह रहे हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने वहां पे क्या बोला, माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहां पे जब आप देखेंगे जो चीज मोड में है, ये 2 की पावर एक्स इज मोड में, और इसके बाहर नेगेटिव लगा हुआ, इसीलिए नंबर यहां भी जा रहा है। ठीक है, नंबर पॉजिटिव एक्सिस में भी जा रहा है, और नंबर ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव में भी जा रहा है और ये नेगेटिव में भी आ रहा है उतने से ही। ठीक है, और साथ में आपके एक्स एक मल्टीपल है जो राइट हैंड साइड पे है। बाकी जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ग्राफ अगर पहले बनाया नहीं हुआ है ना, अगर ग्राफ पहले आपने बनाया नहीं हुआ है मोड फंक्शन का इस तरह का, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर वहां पे इस तरह के क्वेश्चन को आप ना डील करें, उनको आप साइड कर दें कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं है क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो 50 मार्क्स चाहिए। तो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज बी, because it is a odd sort of function, and for odd function the property is unique, that f of minus x is equal to minus of fx. Hence the correct answer is fx is equal to x 2 raised to the power minus of mod x. मोड जब भी किसी चीज में लग जाता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बाहर निकल के पॉजिटिव आती है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स बहुत हार्डकोर नहीं पढ़ी हो 11-12 तक, वो इसको छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक? जल्दी बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, तो शुरू का जो 15 मार्क्स का जनरल सेक्शन है, उसमें से कम आप 10-12 नंबर इजीली पिक कर सकते हो गाइस। मेरा बताने का मीनिंग ये है, तो कोई सेपरेटली आपको बहुत ज्यादा हॉक्स कॉल इसके लिए लेनी है। अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो यू कैन इजीली क्वालिफाई दिस एग्जाम। कोई बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है ये, और वैल्यू एडिशन एग्जाम है। काफी वैल्यू इससे मिल रही है लोगों को आजकल, मतलब आईआईटीज में स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पैसेज बिलो और फॉलो फ्रॉम इट। मतलब नॉट पूछा है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। कहता है कहता है वी टेंड टू थिंक ऑफ कैंसर एज अ मॉडर्न इलनेस बिकॉज इट मेटाफर्स आर सो मॉडर्न। हम कहते हैं कि कैंसर आज की मॉडर्न बीमारी है। ठीक है, इट इज अ डिजीज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सडन ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल की ग्रोथ जो है अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, अ ग्रोथ दैट इज नॉन स्टॉपेबल या अनस्टॉपेबल, टिप्ड इनटू द abyss of no control, modern cell biology encourage us to imagine the cell as a molecular machine. Cancer is that machine, unable to quench
its initial command to grow and thus transform into a indestructible self-propelled automaton. मतलब कि इतना ग्रो कर जाती है कोई सेल, हाइपर ग्रोथ उसमें हो जाती है, और ऐसा बोलते हैं कि हम जो सेल साइकिल के चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सीडी के जिनको साइक्लिंग्स बोलते हैं, वो फेल कर जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते ग्रोथ को। और बहुत सारे जीन बिल मॉल्ड है इसमें, जैसे P450 है, P50 जीन है, बहुत सारे कैंसर इंड्यूसिंग जीन है, और ये लिया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी कोई है जिन्होंने लिखा। अब ये कहता है कि कौन सा इसमें से नहीं ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कैंसर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैंसर वो उस तरह की ग्रोथ है विच इज फेल टू स्टॉप, राइट। अब हम देखते हैं फटाफट से। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाई कैंसर सीम सो मॉडर्न टू मोस्ट ऑफ अस। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमें लगता है कि आज के लाइफस्टाइल में जो कैंसर है, क्योंकि हमें डिस्क्राइब करना है जो डिस्क्राइब ना कर रहा हो, तो क्योंकि ये कह दिया है कि मॉडर्न इलनेस है, तो हमें इसीलिए हमें ये मॉडर्न लगता है। जब हम कह ही रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल मॉडर्न इलनेस की बीमारी है कैंसर, पहले उतना नहीं दिखता था लोगों में, आजकल बहुत ज्यादा दिखता है। तो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द व्हाई कैंसर सीम्स टू बी अ मॉडर्न मॉडर्न टू मोस्ट ऑफ अस। ये तो एक बात हुई। दूसरा, इट टेल अस द मॉडर्न सेल बायोलॉजी यूजेस एंड प्रमोट मेटाफर ऑफ मशीनरी। मॉडर्न सेल बायोलॉजी जो है वो मशीनरी से कंपेयर करती है कि कैंसर एक ऐसी मशीनरी है, सेल जो ग्रोथ को स्टॉप करना भूल गया है, मतलब ग्रो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ठीक है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, अभी कर ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, ठीक है, अभी आपके सामने ही आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है, मॉडर्न सेल बायोलॉजी इनकरेज मेटाफर ऑफ मशीनरी एंड कैंसर इज ऑफन इमेजिन एज अ मशीन। बिल्कुल ठीक बात है, ये पैसेज में मेंशन किया है, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमोटोन इसको कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए फटाफट से। नेक्स्ट में क्या बोलता है गाइस, कहता है मॉडर्न सेल बायोलॉजी नेवर यूजेज फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज मेटाफर टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन एनीथिंग। तो ये तो अगेंस्ट द पैसेज जा रहा है, ये कह रहा है कि मॉडर्न सेल बायोलॉजी यूज ही नहीं करती है ऐसी लैंग्वेज कि हम कह दें कि मेटाफर कोई लैंग्वेज हम यूज कर ले, ठीक है ना। तो वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब वैसा तो पैसेज सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है जो आपको लास्ट में लिखा गया है, ये स्टेटमेंट अलोंग द पैसेज नहीं जा रहा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो मेटाफर जब आप बोलते हैं, अगर हिंदी में कहूं कि जैसे रूप होता है ना, रूप दिखने का, ठीक है, या फिर आप कह दो कि भाई एक तरह का ड्रामा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बोलते हैं मेटाफर। तो मॉडर्न सेल बायोलॉजी तो वैसा अडॉप्ट नहीं करती है एज पर जो फोर्थ लाइन में कहा गया है। तो ये जो है, क्योंकि ये इनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही आंसर होगा, बिकॉज उन्होंने पूछा था नॉट। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहां भी गलत कर, उन्होंने पूछा था नॉट, तो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ वन ओनली। फोर्थ ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फोर्थ लाइन में पैसेज में ये कह रहा है मॉडर्न सेल बायोलॉजी नेवर यूज फ्यूगरेटिव लैंग्वेज, बट इस पैसेज में तो फ्यूगरेटिव लैंग्वेज यूज की गई है। उसने तो कहा है, एक रूप दिया है, फिगर दी है उसको मेटाफर बोल के, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर एट्थ क्वेश्चन इज फोर्थ। करेक्ट आंसर आपका रहेगा गाइज यहाँ पे फोर्थ, मॉडर्न सेल बायोलॉजी नेवर यूज फिगरेटिव लैंग्वेज such as metaphor to describe explain anything, and this line is basically not following the passage above. क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? जल्दी बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, ठीक है, ये जो है ये क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, वी हैव शोन इट हेयर। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते थे 10th क्लास में, 9th क्लास में, ठीक है, तो हमें कहा जाता था कि इसको लिखो, और आपको वहां पे एक बात बोली जाती थी कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपकी एडअप हो सकती है गाइस, ठीक है। जब बेस आपका सेम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट आपको करना है और इसके यूनिट प्लेस में, मतलब यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगी। तो मैंने लिखा 3 raised to the power 999 into 7 raised to the power 100,
अब आपको अगर याद हो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता था कि 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर y, अगर इनका बेस सेम है तो ये हो जाता था 5 रेज टू द पावर x प्लस वाई। हो जाता था कि नहीं हो जाता था गाइस, जल्दी बताओ। है ना, ऐसी प्रॉपर्टी होती थी ना कि जो पावर से आपकी एडिटिव होती है अगर बेस सेम होता है ना। ठीक है, तो ये सेम ही चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, और इसके यूनिट, इनका जो प्रोडक्ट आएगा फाइनल, ठीक है ना, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी हमें ये बतानी है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा। वैसे तो मैं नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। देखो कैसे। तो जब गाइज मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, 3 रेज टू दी पावर 999 जो लिखा हुआ था, और 7 रेज टू दी पावर 1000, ये तो लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 रेज टू दी पावर 3 को सेपरेट कर लिया। ठीक है, मैंने 3 रेज टू दी पावर 3 को सेपरेट कर लिया, तो इसमें से कितना बचेगा, 996 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ गाइस, 996 बचेगा ना। और 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 249, ये भी 996 आता है। तो ये तो मैंने 3 को लिख लिया। ऐसे ही जो 1000 था उसको मैंने लिख लिया 7 रेज टू दी पावर 4 इंटू 250, तो ये भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये है 3 रेज टू दी पावर 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो। 7 रेज टू दी पावर जीरो, यहां पे भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो के आसपास आएगा। 3 रेज टू दी पावर जीरो, ये तो वन हो गए दोनों। किसी की भी पावर जीरो इज समथिंग इज वन। ठीक है, तो ये वन हो गया, वन हो गया, तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आया, 7 आया, तो यूनिट प्लेस पे मेरा 7 आएगा यहाँ। समझ में आ रही है गाइस ये बात। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज पर जिसने मैथमेटिक्स ना पढ़ी हो 11th 12th में, ठीक है, लेकिन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि वी कैन ब्रेक डाउन देम इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, जीरो कैसे आया, अरे भाई लास्ट में इसके जीरो है ना, यूनिट प्लेस पे तो जीरो रहेगी उसकी पावर। जो यूनिट प्लेस पे रहता है वही पावर रहती है उसकी। ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे रहता है। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 250 के आसपास, तो वो भी 1000 की टर्म्स में आएगा, तो जीरो लिखा जाएगा। ठीक है ना, और ये 3 की पावर 3 है ही। ठीक है, तो इसलिए आया। क्लियर है। आप कह रहे हो कि 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 नहीं है क्या। अरे 3 की पावर 3 27 नहीं होता। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 नहीं है। 27 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, तो 7 आ गया यूनिट प्लेस पे। हाँ, 7 की पावर ऑलरेडी जीरो है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें यूनिट प्लेस का बताना है। ठीक है, हमें यूनिट प्लेस का बताना है इस प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट में तो ये क्या होगा, सिर्फ यूनिट प्लेस लेंगे, टू नहीं लेंगे, क्योंकि उनने टेंस प्लेस नहीं बोला है। क्लियर है रंजन प्रताप सिंह को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके आ गया इज आपका 7। ये आपका आ गया 7। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका आ गया 7। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा काम का आया है, ये अच्छा क्वेश्चन था। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, हमें लगा बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना 249 को, तो 999 के आसपास आएगा, करीबन करीबन 1000 से कुछ कम। इसलिए जो जीरो आया इसलिए आया, क्योंकि पावर का यूनिट प्लेस लेना है आपको, सारे डिजिट नहीं लेने। ठीक है, आ जाइए। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूं। ये अच्छा क्वेश्चन आया, लेकिन ये भी जिसने 10th क्लास में थोड़ी मैंसुलेशन पढ़ी है वो कर लेगा। देखो कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से देखे, क्वेश्चन नंबर 10 को पूरा मैंने ये सॉल्व किया हुआ है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 10 में कि अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 6 है।
तो गाइज अगर ये 6 है तो ध्यान रखें ये आधा कितना हो जाएगा 3। पहले ही इसका जरा बना ले समीकरण, ये 3 ये भी 3, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 3 ये भी 3, ठीक है, ये भी 3, ठीक है, जहां तक भी जाए ये भी 3 रेडियस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, ये भी 3 आधा और ये भी 3, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा 3 3 3 3 कैसे हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आप देखें स्क्वायर के अंदर ये सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखें कि जो ये दिए हुए हैं दोनों, ये हमारे सेमी सर्कल है, ठीक है, हाफ सर्कल है मतलब, ठीक है, जिनका एरिया कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। और अगर उसमें से भी कट कर दूं मैं, अगर मैं उसमें से भी कट कर दूं, जो ये वाला शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये वाले रीजन की बात करूं मैं, तो सेमी सर्कल में से ये कट करके निकाल दिया गया कॉमन एरिया, मतलब इन दोनों एरिया में से ये कट करके निकाल दिया है, ठीक है ना। ये बस थोड़ी सी एक इमेजिनेशन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी जो डायग्राम में दिख रही है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है गाइस, नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय टू सेमी सर्कल whose diameter आर द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो शेडेड रीजन है, ठीक है, उसकी बाउंड्री को कौन डिफाइन कर रहा है, दो सेमी सर्कल डिफाइन कर रहे हैं जिनका डायमीटर क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब कहता है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, तो जो शेडेड रीजन का एरिया है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, कि अगर मैं इस पूरे में से, ठीक है, आगे देखिए हम, मैं दिखाता हूं आपको शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। देखिए ये मेरा शेडेड रीजन है जो ए मैंने लिखा, ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे आएगा, ये आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूं, मैं दोनों हाफ सर्कल का एरिया ऐड कर दूं। पहले देखिएगा जरा मेरी बात को, इस हाफ सर्कल का इस हाफ सर्कल का एरिया मैं ऐड कर दूं, और उसमें से 2 टाइम्स, क्योंकि ये इसका भी पार्ट है और ये इसका भी पार्ट है, तो 2 टाइम्स ए का एरिया घटा दूं, तो आ जाएगा शेडेड रीजन जो ब्लैक कलर का है। तो गाइज एक बात बताइए, जो एरिया है पहले वाले का, इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का एरिया जो है ना, वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। इस सेमी सर्कल का भी एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर मैं दोनों में से ही ए को घटा देता हूं एक बार इससे, क्योंकि ए इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये नहीं आ जाएगा क्या, पहले बताओ जल्दी फटाफट से। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, कि दोनों सेमी सर्कल, दो जो सेमी सर्कल है, जो आपके हाफ सर्कल है, उनको अगर मैं ऐड कर दूं और 2 टाइम्स ऑफ ए घटा दूं, क्योंकि दोनों का ही पार्ट है ए, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, अब वैल्यूज इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या आ जाएगा गाइस, 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच जाएगा गाइस, मेरे पास बच जाएगा क्या, हाँ मेरे पास बचेगा क्या गाइस, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2a, ठीक है। अब आर तो कितना है, 3 है, तो पाई एस सच रहेगा, R3 रहेगा, स्क्वायर माइनस 2a। क्या यहां तक सबको समझ में आया, यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये पाई है, इसको आप एन मत मानना, पाई आर कितना था 3 रेडियस माइनस 2a, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये एक बात थी, इसको अब आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, अब ये वाले एरिया में भी क्रक्स है, इस जो हाफ एरिया मैंने बनाया, इसमें मैं दो अलग अलग तरह के बाइसेक्टर बना सकता हूं। तो एरिया जो बी का है, ठीक है, जो बी का एरिया है, ठीक है ना, तो बी का एरिया अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से, जो बी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, जो मैंने यहाँ पे बी एरिया इंडिकेट किया है ना, उसको कैसे निकाल सकता हूं, तो उसको कैसे निकालूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, क्वार्टर सर्कल हो जाएगा, क्वार्टर सर्कल हो जाएगा गाइस। तो क्वार्टर सर्कल में से मैं सबट्रैक्ट करूंगा किसको, ये ट्राइंगल जो दिया हुआ है इसके एरिया को, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो 3 इंटू 3 इंटू हाफ,
तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उस क्वार्टर सर्कल में से। ये जो क्वार्टर सर्कल मिला हुआ है मेरा, ठीक है ना, इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वो कैसे करूंगा? क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है गाइस? 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है हाफ सर्कल का, तो क्वार्टर का कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बी क्या आ जाएगा निकल के? पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ 9/2, ये बी आ जाएगा मेरा निकल। ठीक है जी, है ना? तो ये मेरा निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 9/2। इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो आर मेरा क्या था? 3 था, तो ये हो जाएगा 9 पाई/4 माइनस 9/2, ये आ जाएगा। इतना क्लियर है? जल्दी बताइए। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो ए का एरिया था, अरे क्वार्टर कैसे पता चला? दिख रहा है क्वार्टर कैसे पता चला बेटे? ये एरिया कितना है? ये क्वार्टर नहीं है। ये इतना एरिया कितना है? ये क्वार्टर नहीं है क्या? बताओ, ये इस सर्कल का क्वार्टर नहीं है क्या? बताओ जल्दी, पूजा टाक, ये इसका क्वार्टर नहीं है? अरे बताओ। हाँ, तो आपको ये भी दिख रहा है कि जो हमने पहले ए माना था, बी उसका 2 टाइम्स है, तो ए इज इक्वल टू 2b, तो एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो ये हमने यहां पे लिख दिया, है ना? तो ए का एरिया तो मैं पीछे छोड़ाया। ए का एरिया कितना था भाई? ए का एरिया में पीछे छोड़ाया, कितना था? 9 पाई-2a। ठीक है, 9 पाई-2a, है ना? ये था ना? अब यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि एरिया जो ए का था वो 2 टाइम्स बी था। ठीक है, वो 2 टाइम्स ऑफ बी था। तो बस अब मेरे लिए क्या समस्या है? 2 टाइम्स ऑफ बी कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ये क्या आ जाएगा? इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। पहले ये आ रहा था 9 पाई/4 माइनस 9/2, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये चीज आ गई। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब मुझे अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a-2b। ठीक है ना? तो 9 पाई में से आप टोटल को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 पाई कहां था पीछे? देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये लंबा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहां देखो, 9 पाई-2a था ना? ठीक है जी, और a को मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, तो 9 पाई में से मैं घटा दूंगा। ठीक है, a कितना है? 2b के आसपास है, तो एरिया जो पीछे हम निकाल के आए थे वो था 9 पाई-2a, तो मतलब मुझे a की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पे मैंने यही किया है। ये तो मेरा 9 पाई है और 2 है, और a की वैल्यू कितनी आई गाइस? a की वैल्यू ये आई है 9 पाई-9, ये मैंने घटा दी इसमें से। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपको आएगा 9 पाई माइनस ऑफ 9 पाई प्लस ऑफ 18, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? जल्दी बताइए। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इमेजिनेशन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता था। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, होपफुली अभी मैं इसको शायद अपलोड कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा, और बाकी तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया है कि आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो बस इसमें आपको इस कॉमन रीजन को आइडेंटिफाई करना था कि कैसे निकालना है। तो विद दिस आपका ये सेक्शन ए ओवर हो गया गाइस, और नेक्स्ट क्लास हमारी क्योंकि शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे अगली बार वो रहेगा मेन पेपर का। अभी 15 मार्क्स के पेपर को आपने देख लिया है, आपने समझ लिया है कि 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। उस 15 में से मैं अगर 10-12 भी ले जाऊं तो मेरा यहाँ का जो है कोटा फुल हो जाएगा। 10 to 12 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं सेक्शन ए में, तो फिर आपको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है 50 मार्क्स लेने से। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 10 to 12 मार्क्स मुझे सेक्शन ए में लेने ही है, तब आप क्या है, एक प्रोबेबल कैंडिडेट बन जाएंगे।
ठीक है, तो विद दिस आपका ये सेक्शन ए इज ओवर, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। अब जब हमारी अगली क्लास होगी जो कि कल होगी, और होपफुली अब हम डिस्कशन पे थोड़ा ज्यादा इम्फेसिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम 4 तारीख या 3 तारीख को शायद एग्जाम है। ठीक है, तो इसके हमें बाकी के 55 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं जो कि हमारे सारे हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आपको डॉक्यूमेंटेड भी मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा, पर डॉक्यूमेंटेड विल कम अ बिट लेटर, लाइक 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे, बट उससे पहले वी वुड ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट 10 क्वेश्चन। नाउ द क्लास इज शेड्यूल्ड, सो वी विल कीप शटिंग इट डाउन। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंसेस के कैंडिडेट हैं हमारे, सब इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे विच आर वेरी कॉमन। अगर मैं देखूं, इस बार भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे दिसंबर में जो गेट से ओवरलैपिंग थे, और गेट में भी ऐसे थे जो नेट से ओवरलैपिंग थे, तो आपको दोनों का ड्यूल बेनिफिट उठाना है। तो विद दिस आई विल स्टॉप हेयर। ठीक है, आई विल स्टॉप हेयर एंड वी विल रिज्यूम इट टुमारो। और अब हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, राइट। और सब्जेक्ट में हम जाएंगे अब 65 तक पूरा डिटेल में एकदम। तो उसको जरूर आप अटेंड करिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इस बार के एग्जाम में भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीटिशन काफी है। गेट में भी अगर हम देखें, कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन होना काफी है, तो दैट मार्क्स द गुड थिंग कि कॉन्सेप्ट रिपीट होने से आपको एडवांटेज मिलता है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पेशेंस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सी यू गाइस टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली एट द सेम टाइम फॉर द डिस्कशन पार्ट। थैंक यू।